So good morning, everyone. Okay, we are studying accountancy or accounting. Accountancy is a subject in which we study about accounting, which we learn about accounting. But we need to understand what exactly do we mean by accounting. If you are doing a business, you may be handling various transactions in your business. Sometimes you are purchasing goods, that is one business transaction. Sometime you are selling goods, that is another business transaction. Sometime you are paying salary to the employees. You may be paying rent to the landlord. You may be buying stationery for the use of business. You may be paying electricity bill, telephone bill, and so many other transactions are there every day in a business. So keeping a systematic record of all those transactions is basically accounting. So in simple terms, accounting means maintaining record of all business transactions in a systematic manner. Is that clear? Yes, sir. Okay. Now, how do we define accounting? Accounting, इसको लिखते जाओ साथ साथ. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing. पहले लिख लो फिर डिस्कस करते हैं. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. इसको लिख के बताओ, लिखने के बाद बताओ, then I'll discuss it. Sir, the notes of all the chapters are already written in the register. You've already written, very good. So let's discuss this then. Accounting is the art, or we can say it is the science, it is the way of recording, classifying. Recording और classifying में पहले difference समझते हैं. Suppose you might have noticed that in the students who are studying in colleges, they generally do not carry a bag full of books and notebooks to the college every day. Some of them, what they do is they just carry one notebook and they note down the work of all the subjects of all the classes in that one notebook only in the college. When they come back home, at home they are maintaining separate notebooks for each subject. So what they do is when they come home, they copy the work of each subject in the respective notebook of that subject from that common notebook that they had taken to the college. तो कॉलेज में जब एक ही नोटबुक में वो सारे सब्जेक्ट्स का काम नोट करते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग. वो हो गया रिकॉर्डिंग. When they have reached back home and copied the work or transferred the work from that common notebook to notebooks of different subjects, that is classifying. Classifying मतलब categorizing. Similarly, in a business, दिन भर में बहुत सारी transactions होती हैं. They are recorded in one or very few books initially. As and when they take place, they are recorded. In which books? We call them subsidiary books or books of original entry. Then at the end of day, all these transactions are copied or posted. We use the term posted to individual accounts. There is a separate account for salary. There is separate account for cash, for bank, for purchases, for stationery, for advertising, for rent received, for rent paid, and so on.
So there is a separate account. Account means a separate record of related to a particular item. And at the end of the day, all the transactions from the subsidiary books are posted to these individual accounts. Yes, were you saying something? Sir, earlier the screen just freezed, so you were not audible. Now you are. Okay, okay, good. So recording और classifying समझ में आ गया? Yes, sir. This is done on a daily basis. दिन भर में ट्रांजेक्शन्स मेन बुक्स में रिकॉर्ड होती रहती हैं. एंड ऑफ द डे उन्हें अलग अलग लेजर अकाउंट्स में, लेजर अकाउंट्स कहते हैं हम उन्हें, हर चीज का एक अलग लेजर अकाउंट होता है, उसमें पोस्ट करते जाते हैं. ये थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है, ये डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ. लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हैं हम, तो हम ये भी पता करना चाहेंगे हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है. ठीक है, तो उसके लिए व्हाट वी डू इज एट द एंड ऑफ ईयर, व्हेन वी से ईयर इन अकाउंटिंग वी टेक ईयर as financial year generally, if nothing else is specified. April to March, 1st April to 31st March. ठीक है, so at the end of year all the ledger accounts are closed for the time being, and their balances are written in a statement which is called trial balance. And then to ascertain the profitability, income statement is prepared, trading account and profit and loss account. And to ascertain the financial position, another statement is prepared which is called balance sheet. This is called summarizing. ठीक है, which is done at the, जैसे आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो, उसके एंड में उसकी समरी होती है, मेन क्या हुआ. इसी तरह से पूरे ईयर में बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हुई उनकी समरी हो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कि पूरे साल में जो ट्रांजैक्शंस हुई एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कितना प्रॉफिट या लॉस आया वो पता चल जाएगा, और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं, और क्या क्या लायबिलिटीज हैं जो हमने रीपे करनी है. ठीक है, आगे लिखा है इन अ सिग्निफिकेंट मैनर. सिग्निफिकेंट मतलब सिस्टमैटिक मैनर. एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. इन टर्म्स ऑफ मनी का क्या मतलब है कि सपोज आपने स्टेशनरी शॉप है आपकी, आपने 5 बुक्स बेची, तो सिंपली सोल्ड 5 बुक्स लिखने से काम नहीं चलेगा. फिर आपने दो पेन्स के बॉक्सेस खरीदे, परचेज 2 बॉक्सेस ऑफ पेन. अगर इस तरह से लिखते जाएंगे और अमाउंट साथ में नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद हम भूल जाएंगे कि वो बुक्स कितने की सेल की थी या वो पेन्स के बॉक्सेस कितने के खरीदे थे, और फिर हम प्रॉफिट लॉस वगैरह सब कैसे पता करेंगे ईयर के एंड में. पूरे साल में तो ऐसी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो चुकी होंगी. सो दे हैव टू बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब क्या चीज खरीदी या बेची या क्या एक्सपेंस हुआ या क्या इनकम हुई, उसके साथ साथ हर एक के साथ उसका अमाउंट भी लिखना है. Transactions and events which are in part at least of a financial character, मतलब वही ट्रांजेक्शन्स हम एंटर कर सकते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हों. फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. फॉर एग्जाम्पल गुड्स सोल्ड. आई टोल्ड यू 5 बुक्स सोल्ड. ईच बुक इज सोल्ड फॉर 200 रुपीज. सो 5 बुक्स सोल्ड फॉर 1000 रुपीज. तो इसको मेजर कर सकते हैं मनी टर्म्स में, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे. सपोज द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड योर शॉप, डिड नॉट बाय एनीथिंग बट जस्ट विजिटेड, ही इनॉग्रेटेड योर शॉप एंड ही वेंट अवे. नाउ विल दिस अफेक्ट योर बिजनेस और नॉट? So maybe more people will be attracted to our shop. Yes, many people will be attracted. They will come to know about your business. The prime minister has visited, but visit of prime minister
वी कैन नॉट रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग बिकॉज उसको कोई मनी टर्म्स में हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने ना कुछ खरीदा ना बेचा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई उनके साथ मनी टर्म्स में. So it cannot be recorded, although it may be very important for the business. Similarly, the health of the employees, the sincerity of the employees, or vice versa, the efficiency or inefficiency of our employees, all these affect our business, but they cannot be recorded because they cannot be measured in money terms. ठीक है, तो जब हम कहते हैं in terms of money, इसका मतलब अलग है, ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर इसका मतलब अलग है. पहले तो ये देखना है ट्रांजैक्शन मनी टर्म्स में मेजर हो सकती है या नहीं, यानी फाइनेंशियल कैरेक्टर की है या नहीं. नहीं है तो फिर रिकॉर्ड ही नहीं करना, आगे और कुछ देखना ही नहीं. अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर की है तो रिकॉर्ड होगी, और रिकॉर्ड होगी तो अब हम आगे चलेंगे, फिर इस पर आएंगे किस टर्म्स में रिकॉर्ड होगी, मनी टर्म्स में रिकॉर्ड होगी, यानी उसका अमाउंट भी साथ साथ लिखा जाएगा. Is this clear, the difference between these two, financial character and in terms of money? Yes. And interpreting the results thereof. Class 11th में syllabus जो है वो यहां तक है, summarizing तक, recording, classifying, summarizing, और in terms of money, transactions of financial character. Analysis and interpretation you will learn in class 12th. लेकिन वो भी है आगे कि एक बार समराइज कर लिया तो उससे हम देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे पिछले सालों से दूसरी फर्म्स के साथ कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है या फॉल हो रही है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी अच्छी है. सो दैट आल्सो कम्स इन अकाउंटिंग. सो नाउ द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट डेफिनेशन इज क्लियर. Yes, sir. नाउ आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिपीट आफ्टर मी. इसको लर्न करेंगे, ठीक है. अभी यहां पर सिर्फ प्रिशिता की आवाज आएगी, लेकिन सबने अपने अपने जहां पे भी आप बैठे हो बोलना है साथ पीछे आफ्टर मी, सो दैट यू आर एबल टू लर्न दिस डेफिनेशन. अकाउंटिंग इज द आर्ट Accounting is the art of recording, classifying and summarizing of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. ठीक है, एक बार फिर से पूरी पढ़ दो ये स्टार्टिंग से. Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. Very good. याद हो गई अब? Yes, sir. देयर ऑफ में सिंगल एफ आएगा, डबल एफ नहीं. एक ऑफ होता है उसका या उसकी, ये वो वाला ऑफ है. एक ऑफ होता है स्विच ऑफ वाला, बंद, ओ डबल एफ. तो ओ डबल एफ वाला ऑफ नहीं आना, यहाँ पे सिंगल एफ वाला आना है, ये ध्यान रखना. नाउ व्हाट इज द नीड और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग? लेट्स डिस्कस दैट. फर्स्ट, एज आई सेड, टू ascertain profitability. ठीक है, I had told you one thing in the beginning, that in the class we will discuss limited portion of theory and in main points. ठीक है, यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन इनकी एक्सप्लेनेशन भी है. एक्सप्लेनेशन आपने बुक से लिखनी है, ठीक है. या तो जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तब आप साथ साथ लिख सकते हो, तो तब लिख लेना, नहीं तो बुक से लिख लेना. टू ascertain profitability, कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये पता कर हमें तभी चल पाएगा जब हमने सिस्टमैटिक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा, अपने एक्सपेंसेस का, अपने इनकम्स का, सारी ट्रांजैक्शंस का. ठीक है, और ये हमें पता चलता है थ्रू प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम ईयर एंड में बनाते हैं. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir.
Then second is depiction of financial position. फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब होता है? हम किसी पर्सन को देखते हैं और कहते हैं ये तो बहुत वेल्दी है. व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से बहुत वेल्दी है? मतलब उसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत प्रॉपर्टीज हैं, कार है, बंगलो है, क्या क्या चीजें हैं. तो उससे पता चलती है इंसान की फाइनेंशियल पोजीशन. लेकिन कई बार जो हमें दिख रहा होता है वो डिसेप्टिव होता है. हमें दिख रहा होता है, सपोज नेबरहुड में कोई पर्सन है बड़े से बंगलों में और बड़ा लैविश लाइफस्टाइल है उनका, 2-3 कार्स हैं बड़ी बड़ी उनके पास, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि ये सारी चीजें उन्होंने लोन पे ली हुई हैं और लोन इतना ज्यादा है कि रीपे करना मुश्किल हो रहा है. तो फाइनेंशियल पोजीशन इसका मतलब खराब है. तो फाइनेंशियल पोजीशन को दो चीजें अफेक्ट करती हैं. एक एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना कैश बैलेंस है, क्या क्या आपके पास प्रॉपर्टीज हैं. ऑन दी अदर हैंड लायबिलिटीज, आपने कितने लोन लिए हुए हैं जो रीपे करना है, कितना उधार लिया हुआ है, क्रेडिट लिया हुआ है किसी से जो वापस करना है, आपने पे करना है. सो इन दोनों को मिलाकर फाइनेंशियल पोजीशन बनती है. आप इन एक तरफ प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एसेट्स, और जो उधार लिया हुआ है या जो लोन लिए हुए हैं उन्हें हम कहते हैं लायबिलिटीज. तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज का जो डिफरेंस आता है वो हमें बताता है फाइनेंशियल पोजीशन. ये डिफरेंस जितना ज्यादा हो इन द टर्म्स की एसेट्स जितने ज्यादा हो लायबिलिटीज के कंपैरिजन में, उतनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होती है. ठीक है. और अगर लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं या ऑलमोस्ट बराबर हैं एसेट्स के, तो इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशन खराब है. क्लियर? यस सर. फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है बैलेंस शीट से जो हम ईयर एंड में बनाते हैं. थर्ड पॉइंट इज असिस्टिंग मैनेजमेंट इन नोइंग व्हाट अमाउंट is owed by the firm and what amount is owed to the firm. Owed, OWED, मतलब has to be paid. कितना अमाउंट हमने किसी को पे करना है, कितना अमाउंट हमें किसी ने पे करना है, ये सब तभी पता रहेगा हमें जब हम प्रॉपरली रिकॉर्ड्स बना के रखेंगे हर चीज के. ठीक है. Then maintenance of systematic business records so that any information required is quickly and easily available. अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बने होंगे, सपोज टुडे आई वांट टू नो 2 months बैक व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ सेल और हाउ मच वाज द कैश बैलेंस, आई कैन नो दैट ओनली इफ आई हैव मेंटेन्ड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. आई कैन जस्ट चेक इन दोज रिकॉर्ड्स एंड आई विल कम टू नो. क्लियर? Yes sir. In assisting management point, not only it helps in knowing the amount which we have to pay or which we have to receive, it also helps in decision making, budgeting, forecasting, controlling. All these are done on the basis of previous accounting information. Then providing information to interested persons or groups. किसी को भी अगर हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है तो उनको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. ओनर्स को इंटरेस्ट होगा जो बिजनेस कर रहे हैं कि भाई कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उन्हें पता चलेगा इसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू. एम्प्लॉइज अगर जानना चाहते हैं कि वो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, तो उन्हें पता चलेगा. एंड सो ऑन. एंड लास्टली, for protecting business assets by keeping proper record of all assets and thereby preventing frauds. एक assets मतलब properties, जो भी चीजें हैं बिजनेस के पास, फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो थेफ्ट या मिसअप्रोप्रिएशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे. So that way it helps in protecting the assets. Clear? Yes sir. Now next heading, attributes or features of accounting. Accounting is an art as well as science. Science subjects कौन से होते हैं? जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. उन्हें हम साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें एक सिस्टमैटिक नॉलेज है, कुछ रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, एंड सो मेनी अदर्स.
which always hold true. तो उसी की तरह अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग की भी कुछ सिस्टमैटिक नॉलेज है जो आगे के चैप्टर्स में पूरी कवर होती है, ठीक है. सो इट इज ऑल्सो साइंस बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ सिस्टमैटिक नॉलेज. किस इस तरह से सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाने हैं, पूरी इसकी सिस्टमैटिक नॉलेज है. आर्ट किसे कहते हैं? जिसमें परफॉर्मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें स्किल्स पर फोकस होता है. तो अकाउंटिंग में नॉलेज तो आपने गेन कर ली, लेकिन उस नॉलेज को यूज करके आपने अकाउंट्स मेंटेन कैसे करने हैं, दैट इज अ स्किल, दैट इज एन आर्ट. जस्ट लाइक studying medical science is a knowledge, is a science, but after getting that knowledge, using that knowledge to treat the patients by a doctor, that is an art. So similarly, accounting is both a science as well as an art. Clear? Yes, sir. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये हम डिस्कस किया अभी कि ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. फिर नेक्स्ट वाला भी हमने अभी डिस्कस किया, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड करते हैं जो मनी टर्म्स में मेजर हो सकती है, लेकिन साथ के साथ उनकी मनी अमाउंट भी नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. फोर्थ, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस. जब भी कोई प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. तो अकाउंटिंग प्रोसेस के भी कुछ स्टेप्स हैं. क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग. पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है भी या नहीं. फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने कहा ना, मतलब मनी टर्म्स में मेजरेबल है या नहीं, हमारे बिजनेस को इंपैक्ट करती है या नहीं. अगर हैं ये दोनों चीजें, देन दैट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन. अगर नहीं है इन दोनों में से कोई भी चीज, तो फिर वो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं करनी. अगर है, then we come to the second step, recording. Involves recording business transactions in a systematic manner soon after their occurrence, and this is done in subsidiary books or books of original entry. Then comes classifying, as we discussed, grouping of transactions on the basis of their nature, done through preparing different लेजर अकाउंट्स. हर चीज का एक अलग अकाउंट होता है, सैलरी का, परचेज का, एडवर्टाइजिंग का, एंड सो ऑन, फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस. एट द एंड ऑफ द ईयर वी डू समराइजिंग, मींस प्रेजेंटिंग द डेटा इन कंडेंस्ड, अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल मैनर. दिस इज डन थ्रू 3 स्टेटमेंट्स: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट. Then comes analysis and interpretation. As I told you, this you will be learning in class 12th. Through analysis and interpretation, we judge the performance of the business, and on that basis we take decisions for the business. And the last step is communicating. ये सब करने के बाद पूरा साल और ईयर के एंड में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाने के बाद, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने के बाद, इन सब रिजल्ट्स को, मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की रिपोर्ट्स को हम कम्युनिकेट करते हैं उन सब लोगों को जो उसमें इंटरेस्टेड हो. ओनर्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है टैक्स पर्पज से, एम्प्लॉइज हो सकते हैं इंटरेस्टेड, एंड सो ऑन. Is the process clear? Yes, sir. Next heading is qualitative characteristics. अब ये ध्यान देना है, characteristics का मतलब होता है फीचर्स. अभी हमने फीचर्स ही तो डिस्कस किए थे, लेकिन ये दोनों हेडिंग्स बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो इन्हें आपस में कंफ्यूज नहीं करना है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों के बीच में, मिक्सअप नहीं करना है. फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग है ये. अब हम क्या कह रहे हैं? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. मतलब अकाउंट्स में जो हम इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, जो भी डेटा हम अकाउंट्स में दिखाएंगे, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए. ठीक है, ये उसके पॉइंट्स हैं. इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं.
फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज रिलायबिलिटी. हम जब कहते हैं किसी को दिस पर्सन इज वेरी रिलायबल, ही और शी इज अ रिलायबल फ्रेंड, क्या मतलब होता है इस बात का? Say that he or she is trustworthy and we can share anything with him or her. वेरी गुड. और ऐसे अच्छे फ्रेंड्स अगर हमारी लाइफ में हो तो दे आर अ ब्लेसिंग, ह्यूज ब्लेसिंग. ठीक है, चाहे वो फैमिली मेंबर हो चाहे वो फ्रेंड्स हो, जिन पे हम रिलाई कर सकते हैं, मतलब जिन्हें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनके साथ हम अपने मन की बात विदाउट एनी हेजिटेशन कर सकते हैं. सिमिलरली अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन हो वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, मतलब भरोसेमंद होनी चाहिए. द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड शुड बी ट्रू एंड डिपेंडेबल. ठीक है, सच्ची इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसपे ट्रस्ट किया जा सके. Transactions should be supported by proper documents like cash memo, receipts, etc. कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका प्रूफ होता है. आपने फी पे की स्कूल में, आपको फी रिसीट मिलती है. ठीक है, आपने सपोज किसी शोरूम में जाके टेलीविजन परचेज किया, उसका आपको कैश मेमो मिलता है, जिसे हम कॉमनली बिल कह देते हैं. ठीक है, बट टेक्निकल टर्म इज कैश मेमो. तो ये डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली संभाल के रखे होने चाहिए ताकि कभी भी चेक किया जा सके कि अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस दिखा रखी हैं अकाउंटिंग बुक्स में वो सही हैं या नहीं. सही है कैसे पता चलेगा? अगर उसका डॉक्यूमेंट हमारे पास, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा, उससे वेरीफाई किया जा सकता है. इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बायस. बायस मींस पार्शियलिटी, मतलब कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए अकाउंटिंग में. It should be free from any errors and bias and should be neutral. Prudent, prudent मतलब conservative. ठीक है, ये अभी आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी डिस्कस करेंगे डिटेल में. प्रूडेंस. एंड इट शुड बी कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट चीज छूटे नहीं. एंड शुड बी बेस्ड ऑन सब्सटेंस ओवर फॉर्म. दिस इज रिलायबिलिटी. इज इट क्लियर? So what does it mean by substance over form? मतलब आगे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम डिस्कस करेंगे, मटेरियलिटी. ये उससे रिलेटेड है कि ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है या जो भी हो रहा है उसका हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट क्या होगा. ठीक है, जैसे मटेरियलिटी प्रिंसिपल, नाउ सिंस यू हैव आस्क्ड, उसमें हम कहते हैं सपोज एक पेन स्टैंड खरीदा आपने, तो पेन स्टैंड वैसे तो एक एसेट है क्योंकि कई साल तक यूज चल जाता है वो, लेकिन क्योंकि छोटा सा खर्चा है तो उसे कई सालों तक एज एन एसेट दिखाते रहें तो इट विल नॉट बी वेरी एडवाइजेबल. तो उसे हम जिस साल खरीदा उसी साल का एक्सपेंस दिखा देते हैं और क्लोज कर देते हैं उसके अकाउंट को एक्सपेंस दिखा के. दिस इज सब्सटेंस ओवर फॉर्म. क्लियर? Yes, sir. बाकी और क्लियर होगा आगे आगे, जैसे प्रिंसिपल्स भी जब हम डिस्कस करेंगे ना उसमें. सेकंड इज रेलेवेंस. एग्जाम्स में भी आपको टीचर्स कहते हैं ना कई बार, आंसर राइट ओनली व्हाटएवर इज रेलेवेंट. क्या मतलब होता है इसका? Sir, important points should be written. Yes, all important points should be covered. एक मतलब इसका ये है. साथ के साथ इसका दूसरा मतलब ये है, एनीथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू द क्वेश्चन शुड नॉट बी रिटन. जो रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है वो जरूर कवर हो, वो छूटे नहीं. और जो रिलेटेड नहीं है उसकी बात करो नहीं. अगर किसी ने आपसे आपका नाम पूछा है तो आप अपना नाम बताओ, एड्रेस मत बताने लग जाओ. ठीक है, जब एड्रेस पूछा जाएगा तब एड्रेस बताना. नाम पूछा है तो सिर्फ नाम बताओ, दैट इज रेलेवेंट. ठीक है, सो ऑल इंफॉर्मेशन likely to affect decision making of any interested person should be provided timely, and at the same time no such information should be provided which is not likely to affect decision making of any interested person. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
इफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई लोन लिया हुआ था और उस पे इंटरेस्ट पे किया है, तो वो दिखाना चाहिए या नहीं? सर यस। यस, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन है। लेकिन किस रेट पर हमने वो इंटरेस्ट पे किया है, क्या वो दिखाना चाहिए? यस सर। यस, वो भी इंपॉर्टेंट है ताकि कैलकुलेशन चेक हो सके कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन जिस बैंक से हमने वो लोन लिया था, उस बैंक के मैनेजर का क्या नाम है, ये लिखना कहीं जरूरी है अकाउंट्स में? नो सर। डज नॉट मैटर एट ऑल, इज नॉट रेलेवेंट, क्योंकि मैनेजर कितने भी चेंज होते रहे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लोन का अमाउंट उतना ही रहेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट उतना ही रहेगा, रीपेमेंट की डेट वही रहेगी। सो दैट इज इररेलेवेंट, नेम ऑफ द मैनेजर, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। ठीक है, कई स्टूडेंट्स की हैंडराइटिंग बड़ी खराब होती है, तो आंसर शीट मिलने के बाद चेक होके जब मिलती है उन्हें, दे समटाइम्स कंप्लेन कि सर इसमें तो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है लेकिन मार्क्स नहीं मिले। तो उन्हें बताना पड़ता है कि भैया तुमने अपनी तरफ से तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन हैंडराइटिंग ऐसी है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ा ही नहीं जा रहा। हाउ डू आई नो कि तुमने ठीक लिखा है? जब तक पढ़ा ही नहीं जाएगा, पढ़ के समझ ही नहीं आएगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि ठीक लिखा है या नहीं? तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है एग्जाम में भी और असाइनमेंट्स वगैरह में भी, जब भी कुछ लिखो इट शुड बी क्लियरली रीडेबल। हैंडराइटिंग सुंदर हो ये जरूरी नहीं है, अगर सुंदर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो डजंट मैटर, लेकिन एटलीस्ट रीडेबल होनी चाहिए, मतलब एक बार पढ़ के समझ में आ जाए क्लियरली क्या लिखा हुआ है, इतना तो होना चाहिए। सेम थिंग अप्लाइज टू अकाउंट इन अकाउंटिंग ऑल्सो। अगर अकाउंट्स में खराब हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा कोई फिगर 1 है या 7 है, ठीक है, तो उससे गलत इंटरप्रिटेशन निकल सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक फिगर, एक एक पर्टिकुलर क्लियरली लिखा होना चाहिए, एक एक डिजिट, स्पेशली अमाउंट्स जब लिख रहे हैं, अमाउंट में एक एक डिजिट बहुत क्लियरली पता चलनी चाहिए क्या डिजिट है ये, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। So information should be presented in such a manner that it is interpreted by the readers in the same sense in which it has been written. लिखने वाले ने जिस सेंस में लिखा है, मतलब मैंने अगर 7 लिखा है तो सबको 7 ही पढ़ने में समझ में आए, ऐसा ना हो कि किसी को वो 1 की तरह लगे, किसी को कुछ और ही डिजिट लगे हो। इंफॉर्मेशन मस्ट बी लेजिबल, लेजिबल मतलब इजीली रीडेबल, एंड एब्रीविएशंस शुड बी अवॉइडेड। कहीं पर भी एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी चाहिए कभी भी, सिर्फ वहां पर जहां पर अलाउड है, और वो आपको थोड़ा पता है, थोड़ा पता चलता रहेगा जैसे जैसे पढ़ते रहोगे, ठीक है। अदरवाइज जनरली फुल फॉर्म्स लिखनी चाहिए हर चीज की, दैट इज द प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग एनीथिंग। ये जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे जनरली हम लोग शॉर्ट में मैसेजेस लिख देते हैं, वर्ड्स की एब्रीविएशंस बना देते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में वो नहीं चलता, तो अकाउंटिंग में वो नहीं चलता। प्रॉपर फुल फॉर्म्स लिखी होनी चाहिए हर चीज की, ठीक है, और एग्जाम में भी इन चीजों के मार्क्स कटते हैं। अमाउंट्स लिखो तो डिजिट के नीचे डिजिट, मतलब यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, उससे टोटल वगैरह आपका ठीक होगा। तो ये चीजें आ जाती हैं अंडरस्टैंडेबिलिटी में। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इज कंपेरेबिलिटी। सपोज मैं 11C का क्लास एवरेज, सारे सब्जेक्ट्स की मिलाकर क्लास एवरेज कंपेयर करूं 11A की क्लास एवरेज से, विल दैट बी अ फेयर कंपैरिजन? I think no, because that's science stream and we are of commerce. एक्सीलेंट, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो बेस शुड बी सेम। हाँ, 11C की 11D से कंपेयर की जाए तो बात समझ में आती है क्योंकि दोनों कॉमर्स सेक्शन है, लेकिन एक कॉमर्स सेक्शन की एवरेज को हम साइंस सेक्शन या ह्यूमैनिटीज सेक्शन की एवरेज से कंपेयर करेंगे तो वो
प्रॉपर कंपैरिजन या फेयर कंपैरिजन नहीं होगा। तो यही चीज यहां पर कहते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल हो, उसके लिए क्या जरूरत है कि स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी फॉलोड, कॉमन रिपोर्टिंग फॉर्मेट शुड बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर so that financial information can be compared with that of previous years and also with that of the other firms. अगर हम हर साल अपना अकाउंट्स मेंटेन करने की पॉलिसीज प्रोसीजर बदलते रहेंगे तो फिर हम एक साल के प्रॉफिट को पिछले सालों के प्रॉफिट से कंपेयर नहीं कर पाएंगे ठीक से। या एक बिजनेस फर्म्स कुछ मेथड्स यूज कर रही है अकाउंटिंग के, दूसरी बिजनेस फर्म कोई और मेथड्स यूज कर रही है, तो उन दोनों के प्रॉफिट्स को कंपेयर करना ठीक नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कंपेरेबिलिटी बनी रहे तो उसके लिए स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी फॉलोड बाय वेरियस फर्म्स एंड ईयर आफ्टर ईयर। हमें चेंज तभी करनी चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी कोई जब या तो लॉ चेंज हो गया हो उससे रिलेटेड या कोई और जेन्युइन जरूरत हो उसे चेंज करने की, अदरवाइज वी शुड फॉलो सेम प्रैक्टिसेस ईयर आफ्टर ईयर। क्लियर? यस सर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, ये दोनों टर्म्स कई बार इंटरचेंजेबली यूज होती हैं बट दे आर डिफरेंट। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, जो भी हमने डिस्कस किया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन भी। लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक का जो पोर्शन है अकाउंटिंग का, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। So bookkeeping is done throughout the year. रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग डेली बेसिस पे पूरा साल चलती रहती है। ईयर के एंड पे जाके बाकी की अकाउंटिंग होती है which includes summarizing, analysis and interpretation. Is it clear? Yes sir. So bookkeeping is just a sub part or subset of accounting which includes only recording and classifying portion of accounting. Accounting, apart from recording and classifying, or we can say apart from bookkeeping, includes summarizing, analysis and interpretation also. Branches of accounting. There are three main branches of accounting. One is financial accounting, जो अभी हम पढ़ रहे हैं और जो पूरे सेशन में है 11th के 12th के, that is financial accounting. Maintaining proper records of all the transactions. एक आप अगर आगे फर्दर अकाउंटिंग पढ़ोगे कॉलेज में या फर्दर किसी कोर्स में, उसमें ये दो और आएंगी, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली फोकस करती है ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी कॉस्ट को फिर डिवाइड करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट में, और डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी सिर्फ इतना मीनिंग जानना ही आपके लिए काफी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट पे अलग से फोकस होता है, प्रॉफिट्स पे, इन्वेस्टमेंट्स पे, इन सब चीजों पे अलग अलग फोकस होता है। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर अप टू हियर? यस सर। Types of accounting information. One is information related to profitability. As I told you, profit and loss account shows the profit earned during the year or loss incurred during the year. हम अपनी सारी इनकम्स को टोटल करते हैं, सारे एक्सपेंसेस को टोटल करते हैं। इनकम्स में से एक्सपेंसेस को जब लेस कर देते हैं तो डिफरेंस आ जाता है प्रॉफिट, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा थे तो फिर डिफरेंस आ जाता है लॉस। Second is information related to financial position. This we get through balance sheet, which contains details of assets, liabilities, capital. Capital मतलब ओनर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में। Third is information about cash flows. ये अगेन 12th में आप डिटेल में पढ़ोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है एक, जिसमें दिखाया जाता है थ्रू आउट द ईयर कहां से कितने कैश आया, कैश एंड बैंक कितना अमाउंट आया और कहां कितना अमाउंट स्पेंड हुआ। एनी डाउट अप टू हियर? सर थर्ड पॉइंट कैश फ्लोज कैश बुक की तरह नहीं है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। वो आप क्लास 12th में समझोगे, अभी मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी अननेसेसरी। ठीक है, इसमें हम वो सारी चीजें दिखाते हैं लेकिन उसे 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर करके दिखाते हैं।
Okay. Okay, sir. We stop here for today. Any doubts, anyone? Sir, I wanted to ask if we can draw the cash books horizontally in projects. Try to draw them vertically because otherwise checking becomes difficult. Check करते हुए उसे rotate करो, फिर check करो, फिर वापस rotate करो. So try to make them vertically. हाँ, अगर बहुत आपको लग रहा है मुश्किल हो रहा है vertically नहीं manage हो रही, only then you can make it horizontally. Okay. Anything else? Okay, thank you. Thank you, sir.